Hello everyone. So this is our another lecture in India-Pakistan relations. So in the previous lecture, we have discussed the political history of Afghanistan, how Pakistan, how Pakistan was created, then the political history and political institutions, then the government of Pakistan, events related to Pakistan. Now in this lecture, I will be discussing the Jammu and Kashmir history. Okay, in international relations. Okay, ताकि आपको ये पता होना चाहिए कि जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री क्या है, देन हम इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस वी विल बी डिस्कसिंग. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये याद रखिएगा दैट व्हाई इंडिया ऐसा क्यों कर रहा है, देन पाकिस्तान का जो व्यू है कश्मीर को लेके क्यों है, तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये याद रखिएगा. So Jammu Kashmir, as you know that Kashmir issue is not just a border dispute between India and Pakistan. It has many dimensions. It has external also, it has internal dimension also. Okay. So first we'll be discussing the history related to Jammu and Kashmir. Okay. You can see this map, Jammu and Kashmir. See this map. This area, Gilgit-Baltistan. Okay. Gilgit-Baltistan, this area. And this is also known as Saksham Valley. Saksham Valley. Okay. Saksham Valley. Okay. Saksham Valley है ये. Okay. And this area is in POK region. And now this area, see यहाँ पे लिखा हुआ है territory ceded by Pakistan to China in 1963 and claimed by India. पाकिस्तान ने किसको दे दिया? चाइना को. And this is Aksai Chin under the control of China. समझ में आ रहा है? And this is Jammu Kashmir. Okay, this is Jammu Kashmir. This is Whale of Kashmir. आप देख सकते हैं, अभी मैं पढ़ाऊंगा हिस्ट्री में आपको समझ में आएगा. This is LOC. Okay, LOC line of control. ये POK region है. Okay, POK. This India China line of actual control, LAC. समझ में आ रहा है? LAC. Okay, ये याद रखिएगा. And this is Siachen Glacier. सियाचिन ग्लेशियर बहुत ही ठंडी जगह है. समझ में आ रहा है? सियाचिन ग्लेशियर. तो ये मैप है कश्मीर का. आप देख सकते हैं इंटरनेशनल बाउंड्रीज किससे रिप्रेजेंटेड है. ट्रेडिशनल बाउंड्रीज, लाइन ऑफ कंट्रोल, इंटरनेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री, इंडियन स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर एंड पाकिस्तान. समझ में आ रहा है? तो ये मैप में आपको पूरा दिख जाएगा. ओके, एंड डोंट वरी, आई विल सेंड यू दिस slide also. Okay, now the history of Jammu Kashmir starts, the real history starts with the Muslim period. Okay, so if I start this history of Jammu and Kashmir, तो मैं इसकी अगर शुरुआत करूं तो मैं एंशिएंट पीरियड से ही शुरुआत करूंगा. ओके, उससे आपको समझ में आएगा. ओके, फॉर एग्जाम्पल you can see this Kashmir map, present Kashmir map, history of Kashmir and adjacent areas like Gilgit-Baltistan, Jammu and Ladakh. Okay, Gilgit-Baltistan, Jammu and Ladakh. Okay, Jammu area. All these were part of different empires and different times. ये याद रखिएगा. ये जितने ही हैं जो आज आप एक यूनाइटेड जम्मू कश्मीर देख रहे हैं, ये सब क्या था? कश्मीर एक अलग एम्पायर, लद्दाख अलग एम्पायर, जम्मू अलग एम्पायर, गिलगिट बल्टिस्तान डिफरेंट एम्पायर. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये याद रखिएगा. ओके, एंड ओवर द इयर्स दिस एरिया
was under the control of Hindu rulers. Okay, this area was first under the control of Hindu rulers, then Muslim emperors, then Sikh, then Afghans, and then Britishers. तो क्रोनोलॉजी देखिए कश्मीर की, कंट्रोल कहां से शुरू होता है? हिंदू, बुद्धिज्म भी था यहां पे कश्मीर में, बुद्धिज्म, हिंदू, देन मुस्लिम रूल आया. ओके, देन मुस्लिम रूल. ओके, देन आफ्टर मुस्लिम्स, सिख, रंजीत सिंह, महाराजा रंजीत सिंह, एंग्लो सिख वॉर, उन्होंने भी कश्मीर पे रूल किया है. सिख, आफ्टर सिख अफगान्स, एंड आफ्टर अफगान ब्रिटिशर्स. और ब्रिटिशर्स के टाइम से ही कौन था? डोगरा, जिनका नाम आप पढ़ते हैं महाराजा हरि सिंह. तो ये क्रोनोलॉजी है रूलर्स की. पहले बुद्धिज्म, देन हिंदूज, देन मुस्लिम, देन सिख, अफगान्स एंड ब्रिटिशर्स, दैट मींस डोगरा. समझ में आ रहा है? ये याद रखिए, ये क्रोनोलॉजी है कश्मीर के हिस्ट्री. ओके, एंड ड्यूरिंग द पीरियड बिफोर 1000 AD, okay, and before 1000 AD, during the period before 1000 AD, okay, Kashmir was an important center of Buddhism and Hinduism. okay, बहुत सारी डायनेस्टीज थी कश्मीर में बिफोर दिस पीरियड. मैं बता रहा हूं बिफोर मुस्लिम पीरियड. ओके, सो बिफोर 1000 AD कश्मीर was an important center of Buddhism, okay, Hinduism, ये याद रखिएगा. And many dynasties were there. For example, गोनादित्य डायनेस्टी, बहुत सारी डायनेस्टीज थी. गोनादित्य, गोनादित्य डायनेस्टी, कारकोटा डायनेस्टी, excuse me, लोहारा डायनेस्टी. okay, so these dynasties, they ruled Kashmir and surrounding areas of northwestern India. okay, they ruled areas of Kashmir and areas of northwestern India. समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा. So the Hindu rule, it was extended until 1339. हिंदू रूल कब तक था? till 1339. and this Hindu rule was replaced by whom? Muslim rule. मैंने अब याद करो, मैंने आपको कश्मीर के बारे में हिस्ट्री पढ़ाई थी मेडिवल में, जब मैं छोटे छोटे किंगडम्स पढ़ा रहा था, उसमें मैंने कश्मीर का नाम लिया था मीर डायनेस्टी का. शाह मीर रूलर था, शाह मीर, हु बिकेम द फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ कश्मीर एंड ही इनॉग्रेटेड शाह मीर डायनेस्टी. याद करिए, नोट्स देखिएगा, उसमें है, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है. ओके, सो दिस मुस्लिम रूल, ये जो मुस्लिम रूल है, ये कब से शुरू होता है? 1339 के बाद से. कौन आया था? शाह मीर, बहुत ही अच्छा रूलर था. ओके, ही बिकेम द फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ कश्मीर, inaugurated Shahmir dynasty, and after that, after this dynasty, Mughal emperor Akbar, okay, he deposed which ruler of Kashmir? Yusuf Shah Chak. अकबर ने किसको हटा दिया था? यूसुफ शाह चक. Akbar deposed him, and Akbar का रूल, Akbar conquered Kashmir in 1587. okay, and he made Kashmir as a part of Mughal Empire. समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा. ओके, ये याद रखिए. तो अब हम पहले कश्मीर की शुरुआत करेंगे
एंशिएंट टाइम से। तो ये एक ब्रीफ मैंने आपको दे दिया, समझ में आ रहा है। अब हम कश्मीर की शुरुआत करेंगे एंशिएंट टाइम से। ओके, तो यहाँ पे मैं पूरा क्रोनोलॉजी लिखूंगा एंड आपको पीडीएफ मिल जाएगा, डोंट वरी। ओके, गिव मी सम वाटर। ओके, नाउ पहले तो मैं थोड़ा बहुत ही एंशिएंट हिस्ट्री बताऊंगा, मतलब थोड़ा मिथोलॉजी चीजें बताऊंगा, मिथोलॉजी। ओके, मिथोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से, देन विल स्टार्ट विद ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अशोका। समझ में आ रहा है, ये याद रखिएगा। तो अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, ओके, हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर, सबसे पहली बात है ये जम्मू नेम कैसे रखा गया जगह का। ओके, जम्मू एंड कश्मीर। ओके, सो लेट मी टेल यू, जम्मू, ओके, जम्मू डिराइव इट्स नेम फ्रॉम द सिटी ऑफ जम्मू। ये याद रखिएगा, जम्मू क्या है, जम्मू कश्मीर की विंटर कैपिटल है। पार्लियामेंट आप देखेंगे जम्मू कश्मीर की विंटर में कहां लगती है, जम्मू में, और समर्स में कहां लगती है, श्रीनगर में। समझ में आ रहा है, बिकॉज ऑफ हार्श वेदर। ओके, सो जम्मू इज द विंटर कैपिटल। ओके, विंटर कैपिटल एंड जम्मू, दिस सिटी जम्मू, ओके, which is the winter capital of the state, it is also known as city of temples। इसको क्या बोलते हैं, सिटी ऑफ temples। okay, why city of temples, because it is believed that the city was originally founded by whom, this city was originally founded by Raja Jambu Lochan in 14th century BC। 14th century BC। Are you getting my point? ये कहा जाता है, ये जो जम्मू का मतलब क्या है, सिटी ऑफ टेम्पल। ओके, और इसको बनाया किसने, कहते हैं कि राजा जम्बू लोचन नाम का एक राजा था 14th सेंचुरी बीसी में, राजा जम्बू लोचन। और इसी जम्बू से क्या नाम रखा गया, जम्मू। समझ में आ रहा है, ये याद रखिएगा। And this Raja Jambu Lochan, who lived in 14th century BC, and the Raja had gone out, एक कहानी है इसके पीछे, that the Raja had gone out one day for hunting, okay, when he happened to witness a tiger and a goat drinking water from one and at the same pond itself। एक सेम तालाब से ही जो गोट एंड टाइगर थे पानी पी रहे थे। एंड दिस एक्स्ट्राऑर्डिनरी, गोट एंड टाइगर साथ में पानी पीना, टाइगर क्या करेगा, गोट को खा जाएगा, बट वहां पे क्या हो रहा था, गोट एंड टाइगर साथ में एक ही पॉन्ड से पानी पी रहे थे। एंड दिस एक्स्ट्राऑर्डिनरी फेनोमेनन, दिस इवेंट set him thinking and he decided to build a city at this site so that the strong and weak could live together in peace and mutual tolerance। समझ में आ रहा है, कितनी बड़ी बात सोची। राजा जम्बू लोचन ने गया था हंटिंग के लिए और उसने देखा एक ही पॉन्ड से टाइगर एंड गोट दोनों पानी पी रहे हैं, और इससे वो सोचने पे मजबूर हो गया कि यहाँ पे एक सिटी बनाना चाहिए, इस साइड पे एक सिटी होना चाहिए। ओके, जहां पे स्ट्रॉन्ग मींस टाइगर, वीक मींस गोट, जहां पे स्ट्रॉन्ग एंड वीक they can live together in peace and mutual tolerance rahe। And eventually he founded the city which came to be known as
जम्बू, इसी राजा ने एक सिटी बनाई जिसका नाम क्या रखा, जम्बू, JAMBOO. He founded the city which came to be known as Jambu after his own name. And with the passage of time and due to its frequent use of pronunciation of the name, it got slightly distorted and the city came to be known as Jammu. तो अब इसको क्या बोला जाता है, जम्मू. प्रोनाउंसिएशन चेंज होते होते ये क्या बन गया, जम्मू. समझ में आया, ये याद रखिएगा. अब आपने एक चीज सुना होगा, जम्मू कश्मीर जाने के लिए एक ट्रेन चलती है जिसका नाम है जम्मू तावी, जम्मू तावी एक्सप्रेस, एक ट्रेन चलती है. ठीक है, पता नहीं आप में से कितने लोग गए होंगे, बट एक ट्रेन है, आप सर्च करना IRCTC के वेबसाइट पे, जम्मू तावी. व्हाट इज तावी? सो सी, जम्मू इज सिचुएटेड ऑन द हिल रॉक ऑन द बैंक ऑफ रिवर तावी. तावी क्या है, रिवर का नाम. ये मैं ज्योग्राफी बता रहा हूं आपको जम्मू कश्मीर की, ध्यान से सुन लीजिए. यहीं पे जम्मू इज सिचुएटेड ऑन अ हिल रॉक ऑन द बैंक ऑफ रिवर तावी, एंड जम्मू इज बाउंडेड बाय विच डिस्ट्रिक्ट, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट इन नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट. जम्मू नॉर्थ में एंड नॉर्थ ईस्ट में कौन से डिस्ट्रिक्ट से घिरा हुआ है, उधमपुर. जहां के कौन से रेवोल्यूशनरी टेररिस्ट थे, उधम सिंह. समझ में आ रहा है, उधम सिंह. तो उधमपुर, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट. समझ में आ रहा है, ये याद रखिएगा. ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड दिस जम्मू कश्मीर is a city of temples. Jammu means city of temples. मैंने आपको कहानी बताई, नाम कैसे रखा गया, सिटी कैसे बनाई है. ओके, ये याद रखिएगा. And this city Jammu, it has various temples. Okay, the city has numerous shrines for Muslims, Sikh, Christians also. Okay, and Jammu also serves as a base camp for the holy shrine of Vaishno Devi. लोग जाते हैं घूमने वैष्णो देवी. ओके, होली श्राइन. आर यू गेटिंग माय पॉइंट, ये याद रखिएगा. एंड जम्मू कश्मीर ज्योग्राफी, अगर अब ज्योग्राफी की बात करें तो जम्मू इज लोकेटेड on 74 degree. Jammu is located on 74 degree. Okay, 74 degree 24 north. समझ में आ रहा है, ये याद रखिएगा. ओके, so 74 degree 24 east. एंड नॉर्थ में कितना है जम्मू, 32 डिग्री 50 नॉर्थ. ये याद रखिएगा, 32 डिग्री 50 नॉर्थ. इंपॉर्टेंट सिटीज के आपको ये डिग्रीज पता होने चाहिए यूपीएससी के लिए. तो मैंने आपको बताया जम्मू नाम कैसे रखा गया. समझ में आ रहा है, ये याद रखिएगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट, ये याद रखिएगा. सो जम्मू, ओके, जम्मू, जम्मू को क्या बोला जाता है, दुग्गर लैंड. जम्मू को क्या बोला जाता है, दुग्गर लैंड. ओके, दुग्गर लैंड मींस where the past still has a living presence. ओके, दुग्गर लैंड का मतलब होता है लैंड ऑफ ग्रैंड एंशिएंट टेम्पल्स, लैंड ऑफ ग्रैंड एंशिएंट टेम्पल्स, इसीलिए दुग्गर लैंड बोलते हैं इसको. एंड ब्यूटीफुल पैलेसेस.
Okay. And it is said that on becoming the king, the Suryavanshi Jambu Lochan, he went on a hunt and crossing the Tavi, and he found a deer and tiger drinking a water from the same tank. Okay. And his ministers explained that this meant that the soil of the place was so virtuous that no living creature bore enmity against another. समझ में आ रहा है? राजा जंबू लोचन के बाद कौन गया दूसरा राजा? राजा सूर्यवंशी. सूर्यवंशी. ओके. जंबू लोचन. इनके बाद कौन गया? इनका हायर सूर्यवंशी जंबू लोचन. जब ये राजा बने, ये भी गए हंटिंग के लिए. एंड ही सॉ व्हेन ही क्रॉस द रिवर तावी, when he crossed the river Tavi, he found that deer and tiger, इस टाइम कौन था? deer and tiger. That deer and tiger drinking water from the same tank, and his ministers explained that this meant that the soil of the place was so virtuous that no living creature bore enmity against each other. समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा, इतनी बड़ी चीज है. अगर आज के लोग तो ये फॉलो ही नहीं करते. जम्मू का मतलब क्या है? पीस. ठीक है, पीस. जहां स्ट्रॉन्ग एंड वीक साथ में रहते हैं. बट इन ब्रिटिशर्स ने खराब कर दी पूरी सिचुएशन. और इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है. अब जैसे पाकिस्तान, इजराइल इस टाइम कितना ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है. इजराइल क्यों बनाया गया? अरे अगर सोचो तो कनेक्ट करो. दो सेंटर्स हैं पाकिस्तान एंड इजराइल. एक सेंट्रल एशिया में ब्रिटिशर्स ने सेंटर बनाया पाकिस्तान अपना, और दूसरा सेंटर बनाया वेस्ट एशिया में ऑयल के लिए, सुएज कैनाल के लिए. किसको? इजराइल को. समझ में आ रहा है? व्हाई? बिकॉज ऑफ कम्युनिज्म. यूएसएसआर बन चुका था, कम्युनिज्म फैल रहा था, इसलिए उनको दो सेंटर चाहिए थे. इसलिए बर्बाद कर दिया उन्होंने वेस्ट एशिया, इजराइल को बना के. इजराइल बनाते कोई दिक्कत नहीं है, सेंटर बनाया उन्होंने अपना हथियार बेचने के लिए. पाकिस्तान में भी हथियार बेचे गए. जम्मू किस लिए बनाया? जम्मू के पास सारी रिसोर्सेज है. जम्मू कश्मीर के पास. अगर जम्मू पीसफुल रहता तो कोई स्विट्जरलैंड जाता? नहीं जाता. टूरिज्म इतना ज्यादा है जम्मू कश्मीर का, कोई स्विट्जरलैंड नहीं जाता. यूरोपियंस यहां आते जम्मू कश्मीर. समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा. तो ये बनाया गया है जहां जानवर भी पीसफुली रहते हैं, वीक एंड स्ट्रॉन्ग, और वहां ऐसी सिचुएशन. तो मैं आपको हिस्ट्री बता रहा था. जम्मू नाम कहां से आया? राजा जंबू लोचन. सूर्यवंशी लोचन, सूर्यवंशी जंबू लोचन. He also went on hunting and he crossed the Tavi river and found a deer and tiger drinking waters from the same tank. And his ministers explained that this meant that the soil of the place was so virtuous that no living creature bore enmity against another. And this Raja Jambu Lochan, ये याद रखिएगा, this Raja Jambu Lochan, ये कब रहता था? 14th century BC. He lived during later Vedic period. Later Vedic period. समझ में आ रहा है? राजा जंबू लोचन, who lived in later Vedic period and decided to founded his capital, and he decided to found his capital, that is जम्बूपुरा. लेटर वैदिक पीरियड में ये राजा जंबू लोचन थे और इन्होंने डिसाइड किया, अपनी कैपिटल बनाया. किसको?
जम्बूपुरा, जम्बूपुरा, समझ में आ रहा है, जम्बूपुरा। ओके, ऑन द राइट बैंक ऑफ तावी रिवर, ऑन द राइट बैंक ऑफ तावी रिवर। क्यों बनाया था इन्होंने जम्बूपुरा कैपिटल? अपने भाई के फोर्ट को देखने के लिए, अपने भाई के किले पे नजर रखने के लिए इन्होंने ये कैपिटल बनाई थी। इनके भाई का क्या नाम था? किंग बाहूज फोर्ट, किंग बाहू, राजा जम्बू लोचन ने सिटी कौन सी बनाई थी? जम्बूपुरा। किस लिए बनाया था? किस लिए बनाया था? टू ओवरलुक, ओके, ओवरलुक हिज ब्रदर्स बाहू फोर्ट, बाहूज फोर्ट। समझ में आ रहा है? ओके, ये याद रखिएगा। तो आज बाहू फोर्ट कहां पे है? जम्मू कश्मीर में। आज लोग जाते हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए। टेम्पल है बाहू फोर्ट के अंदर, कौन सा? टेम्पल ऑफ महाकाली। ये टेम्पल कहाँ है? टेम्पल ऑफ महाकाली। ये कहां पे है? बाहू फोर्ट के अंदर ही है। ओके, and this temple of Mahakali, this Bahu fort, is considered second only to Mata Vaishno Devi in terms of mystical power. This Bahu fort, temple of Mahakali, okay, it is considered second only to Mata Vaishno Devi in terms of mystical power. समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा। और जो ये टेम्पल है, ये बनवाया किसने था? This present temple was built shortly after the coronation of Maharaja Gulab Singh. Maharaja Gulab Singh, महाराजा गुलाब सिंह ने बनवाया था। कब? 1822 में। डोगरा डायनेस्टी के थे, ब्रिटिश प्रोटेक्टरेट थे ये लोग, ब्रिटिश इन्हें प्रोटेक्ट करते थे और ये ब्रिटिशर्स को पैसे देते थे। डोगरा डायनेस्टी, और इन्हीं के खानदान के थे महाराजा हरि सिंह। ये याद रखिएगा। समझ में आ रहा है? ये याद रखिए। So Jammu is famous for its temples. समझ में आ रहा है? जम्मू इज फेमस फॉर इट्स टेम्पल। ओके, तो अब आप देखिए कि जम्मू इज नोन फॉर एज द सिटी ऑफ टेम्पल्स। ओके, एंड इफ बाहू माता, बाहू माता, बाहू फोर्ट, बाहू माता मीन्स महाकाली टेम्पल, इफ बाहू माता इज प्रिसाइडिंग डीटी ऑफ जम्मू, then the another shrine in Jammu Kashmir is Dargah of Pir Budan Ali Shah. Dargah of पीर बाबा की दरगाह है, क्या नाम है? बुधान अली शाह, बुधान अली शाह, अनदर श्राइन दैट प्रोटेक्ट जम्मुइट्स। तो दो मेन है जम्मू के डीटीज, कौन कौन से? एक तो बाहू माता, दूसरा पीर बुदान अली शाह। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको पता होनी चाहिए। ओके, सो नाउ, तो ये था जम्मू की कहानी। ओके, अभी एंशिएंट हिस्ट्री मैंने शुरू नहीं की है, मैंने अभी आपको ये क्या बताया है कि नाम कैसे रखा गया, इसके पीछे हिस्ट्री क्या है, मैंने वो चीज बताया है। समझ में आ रहा है? अब मैं थोड़ा कश्मीर के बारे में बताऊंगा। है ये भी हिस्ट्री का पार्ट ही, ये याद रखिएगा। ओके, नाउ कश्मीर। स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। समझ में आ रहा है? स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, बहुत ही खूबसूरत जगह है कश्मीर।
घूम के आइएगा, कोरोना के बाद, अभी नहीं। समझ में आ रहा है? तो ये जो कश्मीर नाम है, ओके, ये याद रखिएगा, ये जो कश्मीर नाम है, इसमें एक तो कश्यप, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं कश्मीर के बारे में थोड़ा बताता हूं। अकॉर्डिंग टू एन एजेंट लेजेंड, देयर वॉज एक संत मुनि, एसेटिक पर्सन, एक संत मुनि थे, एसेटिक पर्सन, जिनका नाम था कश्यप। कश्यप, ओके, an ascetic named Kashyap, he reclaimed the land now comprising कश्मीर। और ये जो कश्यप है, ये रिक्लेम करते हैं क्या, कि कश्मीर कश्यप की है। एंड समझ में आ रहा है, ये याद रखिएगा, कश्मीर फ्रॉम वास्ट लेक। और उस टाइम पे कश्यप जो मुनि थे, उस टाइम पे इस कश्यप के पास जो लैंड थी, ये जो संत, ये जो मुनि थे, इनकी लैंड को कहा जाता था कश्यपा मार। कश्यपा मार, इनकी लैंड को क्या कहा जाता था, कश्यपा मार। एंड लेटर दिस कश्यपा मार, आफ्टर सेवरल प्रोनाउंसिएशन, ये क्या बन गया, कश्मीर। समझ में आ रहा है, कश्मीर। एंड बुद्धिज्म वॉज इंट्रोड्यूस्ड by the Mauryan emperor Ashoka in 3rd century BC. Okay, and from 9th century to 12th century, the Kashmir region followed Hinduism. तो 3rd century BC से यहाँ क्या चल रहा है, till 9th century AD, Buddhism was the major religion of Kashmir. Then 9th to 12th क्या हुआ कश्मीर में, हिंदुइज्म। then क्या इंट्रोड्यूस हुआ, मुस्लिम, इस्लाम। इस्लाम के बाद सिख, देन अफगान, एंड देन डोगरा, हिंदू रूल अगेन, डोगरा, ब्रिटिश प्रोटेक्टरेट। समझ में आया? ये है हिस्ट्री कश्मीर की, जहां पीस सिखाया जाता है, हथियार उठाना नहीं सिखाया जाता है। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा, ठीक है। बहुत सारे लोग मैंने देखे जो बोलते हैं अरे कश्मीर आतंकवादियों का शहर। अरे आतंकवादियों का नहीं शहर है, आतंकवादी तुम हो जो ऐसा बोल रहे हो। कश्मीर पीसफुल लोगों का शहर है। समझ में आ रहा है? अब हम मेन हिस्ट्री की शुरुआत करेंगे। तो आपको समझ में आ गया ना कि नाम कैसे रखा गया जम्मू एंड कश्मीर। समझ में आ रहा है? अब हम बात करेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अब जितनी मैंने हिस्ट्री आपको पढ़ाई है, सारी आज यहां पे यूज करनी है आपको। देखता हूं कितना आपको ध्यान रहेगा। ओके, अब याद करिए प्री हिस्टोरिक पीरियड। मैंने आपको कश्मीर की एक साइट पढ़ाई थी जिसका नाम था बरजा होम। आपको शायद याद आ जाए, बरजा होम प्री हिस्टोरिक साइट थी, मैंने आपको पढ़ाया था। एंड दिस बरजा होम क्या था, नियोलिथिक साइट। नियोलिथिक साइट। And this earliest Neolithic sites in the flood plains of Kashmir Valley around 3000 century. This 3000 century BC. And most of the most important Neolithic site कौन सी थी, बरजा होम। मोस्ट इंपॉर्टेंट नियोलिथिक साइट क्या थी, बरजा होम। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये याद रखिएगा, बरजा होम। एंड बरजा होम किस लिए फेमस है, यहां पे क्या पाया गया था, पॉटरी। ओके, पॉटरी। ओके, स्टोन टूल्स,
स्टोन टूल्स, ये सब इंपॉर्टेंट है बर्जा होम। ओके, एंड दिस, ये जो हिस्ट्री है ये कब तक चला? 3000 BC टिल 1700 BC, 3000 BC टू 1700 BC, एंड 1700 BC से क्या शुरू होता है? ऋग्वेदिक फेज, ऋग्वेदिक फेज। एंड 3000 BC टू 1700 BC, दैट मींस कौन सा था एरा? इंडस वैली सिविलाइजेशन एरा। समझ में आ रहा है? बर्जा होम। एंड दैट मींस ड्यूरिंग दिस फेज houses were constructed on a ground level, dead were buried, okay, and बर्जा होम ये जो साइट है ये किस लिए फेमस है? मैंने आपको बताया था, sometimes with domesticated animals and wild animals, the dead were buried with domesticated and wild animals। जो लोग होते थे उनको किसके साथ? डोमेस्टिकेटेड एंड वाइल्ड एनिमल्स के साथ बरी किया जाता था। ओके, इकोनॉमी कैसी थी इस टाइम पे कश्मीर की? सबसिस्टेंस इकोनॉमी, रिक्शे वाला इकोनॉमी। 50 कमाए, 48 एक दिन में खर्च किए, फिर दूसरे दिन कमाएंगे। सबसिस्टेंस इकोनॉमी। एंड द एविडेंस ऑफ दिस इकोनॉमी थ्रू द कल्टिवेशन ऑफ बार्ले, लेंटिल्स। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा। तो ये कहानी कब की थी? ये कहानी थी ऋग्वेदिक फेज की। ऋग्वेदिक फेज मैंने बताया था, सबसिस्टेंस इकोनॉमी, लेंटिल्स एंड ऑल, हाउस बने रहे इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम से ही। यहां से शुरुआत होती है हिस्ट्री की, कश्मीर की, बर्जा होम। ओके, नाउ ड्यूरिंग लेटर वैदिक फेज, अब हम देखेंगे लेटर वैदिक फेज। लेटर वैदिक फेज, एंड ड्यूरिंग लेटर वैदिक, ओके, मैंने आपको लेटर वैदिक फेज में क्या बताया था? कौन सा सिस्टम शुरू हो गया था? 1000 BC इन्वेंशन ऑफ आयरन, दैट मींस एग्रीकल्चरल इकोनॉमी शुरू हो गई, क्योंकि आयरन इन्वेंट हो गया, दैट मींस इन्वेंशन ऑफ प्लो एंड एक्स। समझ में आ रहा है? तो लेटर वैदिक फेज में, ऋग्वेदिक फेज में पॉलिटी कैसी थी? ऋग्वेदिक फेज में पॉलिटी कैसी थी? जना। लेटर वैदिक में पॉलिटी कैसी हो जाएगी? जनपद। दैट मींस यहां पे ट्राइबल पीपल्स एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं, बिकॉज एग्रीकल्चर नहीं है ऋग्वेदिक फेज में। एग्रीकल्चर कहां से आया है? लेटर वैदिक फेज में, जब आयरन का इन्वेंशन हुआ, एंड तब लोगों के पास रहने के लिए जमीन बनी, क्योंकि आयरन से उन्होंने क्या किया? फॉरेस्ट क्लियर किए, अपने लिए सेटलमेंट बनाया, एंड दैट जना बिकेम जनपद। दैट मींस सिटी स्टेट सिस्टम, स्टेट सिस्टम इवॉल्व हुआ यहां पे, स्टेट सिस्टम। समझ में आ रहा है? लेटर वैदिक फेज। ओके, एंड कौन से ट्राइब्स सेटल हुए कश्मीर में? उत्तरा एंड कुरु, उत्तरा एंड कुरु ट्राइब, ये दो ट्राइब थे जो सेटल हुए थे कश्मीर में। कुरु मैंने बताया था, कुरु कहां के थे? ऋग्वेदिक ट्राइब के थे। और यहां पे जब कुरु ट्राइब को रहने के लिए जगह मिल जाएगी तो वो जगह क्या नाम हो जाएगा? कुरुक्षेत्रा। यहां पे जगह नहीं है, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, यहां पे जगह मिली और वो जगह क्या हो गई? कुरु की, कुरुक्षेत्रा। तो कश्मीर में लेटर वैदिक एज में कौन से ट्राइब्स थे? उत्तारा एंड कुरूज, ये दो ट्राइब थे, ये याद रखिएगा कश्मीर में। समझ में आ रहा है? लेटर वैदिक एज। ओके, तो ये कहानी थी लेटर वैदिक एज की कश्मीर की। देन 326 BC,
बहुत इंपॉर्टेंट है। अब 326 बीसी क्यों इंपॉर्टेंट है? अलेक्जेंडर इन्वेडेड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा। और अलेक्जेंडर ने इन्वेड किया। अब जिस टाइम पे अलेक्जेंडर ने इन्वेड किया, हिंदुस्तान में कौन सी डायनेस्टी थी? मगध। मगध। रूलर कौन था? धनानंद। धनानंद, नंदा डायनेस्टी। बट नंदा डायनेस्टी सिर्फ मगध तक थी, मगध एंड अदर पार्ट। कश्मीर में कौन सा उस टाइम पे रूल था? कश्मीर में कौन सी डायनेस्टी थी उस टाइम पे 326 बीसी में? कश्मीर में जो रूलर था वो था एबिसेरस। एबिसेरस। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा। कश्मीर में इस टाइम पे रूलर कौन था? एबिसेरस। तो जब 326 बीसी में ओके अलेक्जेंडर की लड़ाई पोरस से हुई थी, उस टाइम पे पोरस ने, पोरस मींस पुरुषोत्तमन, इंडियन नेम था उसका, ठीक है, हिंदू किंग था। तो पोरस ने एबिसेरस से हेल्प मांगी थी उस टाइम पे, क्योंकि अगर आप कश्मीर का मैप देखें तो नॉर्थ वेस्टर्न अफगानिस्तान के पार्ट में आया था और कश्मीर पास में ही है, नेबरिंग है। सो पोरस आस्क्ड एबिसेरस द किंग ऑफ कश्मीर टू हेल्प हिम अगेंस्ट द अलेक्जेंडर इन द बैटल ऑफ, कौन सा बैटल हुआ था पोरस और अलेक्जेंडर का? बैटल ऑफ हाइडास्पीस। समझ में आ रहा है? हाइडास्पीस, ये बैटल हुआ था। इसमें हेल्प मांगी थी पोरस ने, किससे? कश्मीर के राजा एबिसेरस। ओके। और जब बैटल हार गया पोरस, पोरस बैटल हार गया, तो जब पोरस बैटल हार गया, क्योंकि सारे रूलर्स ऐसे ही अलेक्जेंडर के अगेंस्ट में अपने आप को सबमिट कर दे रहे थे, बट पोरस ने कहा कि मैं लड़ूंगा। और उसकी इस बहादुरी को देख के अलेक्जेंडर ने क्या किया था? अलेक्जेंडर ने उसका किंगडम लिया नहीं था। समझ में आ रहा है? अपना बस एक गवर्नर रख के गया था, ये याद रखिएगा। एंड इन दिस बैटल आफ्टर पोरस लॉस द बैटल, तो जो ये रूलर था कश्मीर का एबिसेरस, ही सबमिटेड टू अलेक्जेंडर बाय सेंडिंग हिम ट्रेजर एंड एलिफेंट्स। इसने ट्रेजर, खजाना भेजा और एलिफेंट्स भेजे थे कश्मीर के रूलर ने। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा। एंड इसी के बाद मौर्यन डायनेस्टी बन जाती है इंडिया में, और पूरा हिंदू कुश माउंटेन तक किसका रूल रहता है? अब मौर्यन डायनेस्टी। और अब कश्मीर जो है मौर्यन डायनेस्टी के अंडर में आ जाएगा, किसके टाइम में? अशोका। अब हम बात करेंगे अशोका। अशोका। So during the reign of Ashoka, it's around 304 to 232 BC. अशोका। अब अशोका के टाइम में कश्मीर बिकेम अ पार्ट ऑफ मौर्यन एम्पायर। कश्मीर क्या हो गया? मौर्यन एम्पायर का पार्ट बना। समझ में आ रहा है? एंड बुद्धिज्म वाज इंट्रोड्यूस्ड इन कश्मीर। बुद्धिज्म इंट्रोड्यूस हुआ कहां पे? कश्मीर में। अब यहां से कश्मीर में पहुंचा बुद्धिज्म, तब आप देखेंगे अब लद्दाख में बुद्धिस्ट पॉपुलेशन, अरे मजा आ जाएगा। Buddhism was introduced in Kashmir, and during this period many stupas, okay, were built and some shrines dedicated to Shiva. शिवा कौन थे? लेटर वैदिक के गॉड थे, रुद्रा। उनके लिए भी मंदिर बनवाए गए। एंड एक सिटी बनवाई गई, कौन सी? सिटी ऑफ श्रीनगारी। सिटी ऑफ श्रीनगारी। और इसी सिटी को आज क्या बोलते हैं? श्रीनगर। श्रीनगर। और ये जितनी भी हिस्ट्री और कश्मीर पे जो हिस्ट्री लिखी गई है, उसके लिए किताब भी मैंने आपको नाम बताया था लिटरेचर में, क्या नाम है? राज तरंगिणी। किसने लिखी है? कलहांस की किताब है राज तरंगिणी।
कश्मीर पे लिखी गई है वो किताब। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा, सिटी ऑफ श्रीनगरी, इसी का नाम श्रीनगर बना। ओके, एंड आफ्टर अशोका किसका रूल आया? आफ्टर मौर्याज कश्मीर में किसका रूल आया? कुशांश एम्परर, कुशांश डायनेस्टी, मैंने आपको ये भी पढ़ाया है, कुशांश डायनेस्टी। एम्परर कौन था? कनिष्का। ओके, कनिष्का। समझ में आ रहा है? एम्परर कौन था? कनिष्का। एंड कनिष्का कॉन्कर्ड, कनिष्का किसका एम्परर है? कुशांश डायनेस्टी। एंड कनिष्का, ये अब आप ये देखिएगा, आफ्टर, मैंने आपको एक चीज बताई थी, आफ्टर मौर्याज कौन आ जाएगा? पोस्ट मौर्याज रूलर्स एंड इंडो ग्रीक रूलर्स, इंडो ग्रीक रूलर्स आते हैं। तो इंडो ग्रीक का रूल अब कहां पे होगा? नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में, दैट इज कश्मीर। तो कौन आएगा? कुशांश आएंगे, कुशांश। समझ में आ रहा है? तो अब कुशांश का रूल होगा कश्मीर में, ये याद रखिएगा। किसका रूल है? कुशांश। एम्परर कौन? कनिष्का। समझ में आ रहा है? एम्परर कौन? कनिष्का। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये याद रखिए। एंड कनिष्का ही कॉन्कर्ड कश्मीर एंड ही एस्टैब्लिश्ड द न्यू सिटी कनिष्कापुर। कनिष्का ने कॉन्कर किया कश्मीर को एंड ही एस्टैब्लिश्ड न्यू सिटी दैट इज कनिष्कापुर। न्यू सिटी कौन सी बनाई कश्मीर में इन्होंने? कनिष्कापुर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये याद रखिएगा। एंड आपको पता होना चाहिए कि कनिष्का ने भी बुद्धिज्म को काफी ज्यादा फॉलो किया था, बुद्धिज्म ट्रेडिशन को होल्ड करके रखा था। तभी एक नया बुद्धिज्म स्कूल ऑफ आर्ट बनता है गंधारा, मथुरा, कनिष्का के टाइम में, जिसमें क्या शुरुआत होती है? महायाना ट्रेडिशन की, कि बुद्धा को ह्यूमन फॉर्म दे दिया गया था। याद आया? याद रखिए ये सारी चीजें, ह्यूमन फॉर्म। एंड दैट इज वाई कनिष्का ने कौन सी बुद्धिस्ट काउंसिल कराई थी कश्मीर में? फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कनिष्का ने कराई थी। कहां पे? कश्मीर में। ओके, जहां पे बहुत ही अच्छे अच्छे स्कॉलर्स आए थे। रिवाइज करिए अगर भूल गए हो तो। बहुत ही अच्छे अच्छे स्कॉलर्स आए थे कश्मीर में। कौन कौन से? अश्वघोषा, ओके, नागा अर्जुना, एंड वासुमित्रा। ये तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट बुद्धिज्म स्कॉलर आए थे कश्मीर में। ओके, एंड बाय द 4th century, ओके, बाय द 4th century कश्मीर became a seat of learning for both Buddhism and Jainism. ओके, ये याद रखिएगा, 4th century में कश्मीर क्या बन गया? सीट ऑफ लर्निंग, बुद्धिज्म एंड हिंदुइज्म। 4th century, कितनी बड़ी बात है। आज हम यूएस जाते हैं पढ़ने के लिए, हमारे यहां उस टाइम पे कश्मीर ही था सीट ऑफ लर्निंग। ओके, एंड कश्मीर और कश्मीरी बुद्धिस्ट मिशनरीज, दे हेल्प्ड स्प्रेड बुद्धिज्म टू तिब्बत एंड चाइना। कश्मीर के मिशनरीज ने हेल्प किया बुद्धिज्म को फैलाने में। कहा? तिब्बत एंड चाइना। एंड फ्रॉम द 5th century, ओके, फ्रॉम द 5th century AD, pilgrims from these countries they started visiting Kashmir. Okay, 5th century AD से क्या हुआ? Pilgrims from both the countries
दे स्टार्टेड विजिटिंग कश्मीर, ये याद रखिएगा। समझ में आ रहा है, ये याद रखिएगा। तो एक बहुत ही अच्छे स्कॉलर थे कश्मीर के उस टाइम पे, 343 टू 413 एडी में, बहुत ही अच्छे स्कॉलर थे, बुद्धिस्ट कश्मीरी स्कॉलर थे वो, जिन्होंने चाइना ट्रेवल किया था, जिनका नाम था कुमार जीवा, कुमार जीवा, कश्मीरी स्कॉलर। ही ट्रेवल्ड वेयर, चाइना, फैलाया बुद्धिज्म को इन्होंने। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, ये याद रखिएगा। ओके एंड कुमार जीव ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इंडिया और चाइना के रिलेशंस में। ओके चाइनीज एम्परर था याओ शिंग। दिस चाइनीज एम्परर वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय whom? कुमार जीव। ओके तो बहुत सारे संस्कृत के जो वर्ब थे उनको ट्रांसलेट किया गया चाइनीज में। समझ में आ रहा है, ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। एंड देन मैंने आपको बताया पोस्ट गुप्ता पीरियड, तो कश्मीर का ये अपना एक बुद्धिज्म का सेंटर बन गया था वो। और गुप्ताज के बाद किसका रूल आया था? हुन्स का, व्हाइट हुन्स। ओके ये याद रखिएगा, व्हाइट हुन्स। एंड दिस व्हाइट हुन्स, एक इनके लीडर थे, ओके तोरामन, इनके लीडर थे तोरामन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तोरामन। व्हाइट हुन्स के लीडर थे एक तोरामन। ओके और तोरामन ने हिंदुकुश माउंटेन क्रॉस किया एंड कॉन्कर कर लिया था वेस्टर्न इंडिया कश्मीर के साथ। कश्मीर को भी कॉन्कर किया था, वेस्टर्न इंडिया, लार्ज पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न इंडिया एंड कश्मीर ही कॉन्कर्ड। एंड तोरामन के जो बेटे थे मिहिर कुल, ओके तोरामन के जो बेटे थे मिहिर कुल, ओके एंड ही लेड अ मिलिट्री कैंपेन टू कॉन्कर ऑल नॉर्थ इंडिया। इन्होंने मिलिट्री कैंपेन किया नॉर्थ इंडिया को कॉन्कर करने के लिए। और मिहिर कुल को किसने रोका था? ही वॉज अपोज्ड बाय whom? मिहिर कुल को रोका था मगध के राजा बालादित्य। मिहिर कुल को किसने रोका? बालादित्य। ओके मगध। एंड मिहिर कुल हार जाते हैं मालवा में। एंड आफ्टर द डिफीट, ओके आफ्टर द डिफीट मिहिर कुल रिटर्न टू कश्मीर वेयर ही लेड अ कूप ऑन द किंग। अब मिहिर कुल यहां मालवा में हार गए बालादित्य से, समझ में आ रहा है, बट ये अब कहां वापस जा रहे हैं? कश्मीर। और कश्मीर में इनके पास सिर्फ वेस्टर्न पार्ट था, नॉर्थ इंडिया में जब आए थे ये वेस्टर्न पार्ट सिर्फ कश्मीर था वेस्टर्न इंडिया का, एंड थोड़ा सा कश्मीर का हिस्सा। अब ये कश्मीर में जाएंगे, जो वहां का किंग होगा उसके ऊपर ये मिलिट्री कूप कर देंगे, ये याद रखिएगा। ओके वेयर ही लेड अ कूप ऑन द किंग। और तब जो कश्मीर का राजा होगा वो हट जाएगा एंड मिहिर कुल ने कश्मीर के साथ साथ गंधारा भी कैप्चर कर लिया था। गंधारा
Pakistan. Okay, and there he committed many atrocities on Buddhists. And this guy Mihir Kul, he destroyed the Buddhist shrines. समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा. तो ये कौन थे? मिहिर कुल कौन थे? ये हुन्स थे, व्हाइट हुन्स, जिन्होंने इन्वेड किया था. ये सेंट्रल एशिया के ट्राइब्स थे मिहिर कुल. कश्मीर पे हमला किया, कश्मीर के राजा को हटाया, बुद्धिस्ट का जो राजा था उसको हटाया, देन गंधारा कैप्चर किया और बुद्धिस्ट के श्राइन्स को डिस्ट्रॉय किया. एंड आफ्टर द डेथ ऑफ मिहिर कुल की डेथ के बाद जो हुन्स का अस्तित्व होता है, जो हुन्स की इमेज होती है, वो कमजोर हो जाती है. समझ में आ रहा है? हुन्स की इमेज कमजोर हो जाएगी. एंड आफ्टर द 7th century AD, अब मिहिर कुल की डेथ के बाद, ओके, आफ्टर द डेथ ऑफ मिहिर कुल, दैट मींस 7th century AD, आफ्टर 7th century AD, ओके, सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट टुक प्लेस इन कश्मीरी हिंदुइज्म. अब एक डेवलपमेंट आया कश्मीरी हिंदुइज्म में. अब मैंने आपको बताया एक मिनट. अब मैंने आपको बताया हिंदुइज्म में भी सेक्ट बन गए थे, शैविज्म, वैष्णविज्म, शक्तिज्म. समझ में आ रहा है? पोस्ट गुप्ता पीरियड में बहुत सारे सेक्ट बन गए थे. तो उसी तरीके की चीजें कुछ यहां पे भी हुई कश्मीर में. सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स हुए कहां पे? कश्मीरी हिंदुइज्म में. ओके, and in the centuries that followed, Kashmir produced many poets, philosophers who contributed to Sanskrit literature and Hindu religion. समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा. And one of the most famous scholar of 7th century AD. क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एक स्कॉलर थे. कौन? वासुगुप्ता. बहुत ही फेमस स्कॉलर थे वासुगुप्ता. ही रोट, वासुगुप्ता ने क्या लिखा है? ही रोट शिव सूत्रास, एंड दिस लेड द फाउंडेशन फॉर शैविज्म. इन्होंने शिव सूत्रा लिखा और यहीं से मोनेस्ट्रीज वाला मोनेस्टिक फाउंडेशन हुआ कश्मीर में. किस चीज का? शैविज्म का. कश्मीर शैविज्म का फाउंडेशन हुआ. समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये याद रखिए. ओके, एंड दिस कश्मीर शैविज्म वाज अडॉप्टेड बाय द कॉमन मासेस ऑफ कश्मीर. जो कश्मीर की पॉपुलेशन थी उन्होंने इसको अडॉप्ट किया. एंड द मासेस स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस शैविज्म इन सदर्न इंडिया. ये याद रखिएगा. सदर्न इंडिया में भी बड़ा इंफ्लुएंस था शैविज्म का. समझ में आ रहा है? 7th century AD में शैविज्म स्कॉलर वासुगुप्ता. ओके, नाउ 8th century AD. अब कश्मीर में एम्पायर बनती है कारकोटा. मैंने अभी आपको बताया था गुणादित्य, कारकोटा. तो कारकोटा एम्पायर बनती है कहां? कश्मीर में. एस्टैब्लिश्ड इन कश्मीर. And during the Karkota Empire, Kashmir grew as an imperial power under the Karkotas. समझ में आ रहा है? Kashmir grew as an empire, imperial power under the Karkotas. Okay, कश्मीर इसमें क्या बना? Imperial power. Are you getting my point? Imperial power. Okay, and इनको रिकॉग्नाइज किसने किया?
कश्मीर के किंग को रिकॉग्नाइज किसने किया? पहली बात तो कौन था उस टाइम पे कारकोटा का किंग? उस टाइम पे जो कारकोटा का किंग था वो था चंद्रपिदा। चंद्रपिदा and Chandrapida of Karkota dynasty was recognized by an imperial order of the Chinese emperor as the king of Kashmir. This Chandrapida, he recognized as a king of Kashmir by whom? Chinese, with the recognition of Chinese emperor. This shows the international relations between India and China. Okay. एंड चंद्रपिदा के जो सक्सेसर थे ललितादित्य, ललितादित्य मुक्तापिदा। चंद्रपिदा का सक्सेसर कौन था? ललितादित्य मुक्तापिदा। He led a successful military campaign against Tibetans. इन्होंने कहां पे कैंपेन किया? तिब्बत में, तिब्बतन्स। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा। एंड कहा जाता है कि ललितादित्य मुक्तापिदा ने यशोवर्मन को हरा दिया था। ही डिफीटेड यशोवर्मन। ओके, यशोवर्मन कौन सी डायनेस्टी के थे? कन्याकुब्जा डायनेस्टी। कन्याकुब्जा, कुब्जा डायनेस्टी मैंने आपको बताया था, नोट्स देखिए। ही डिफीटेड ललितादित्य मुक्तापिदा। इन्होंने किसको हराया? यशोवर्मन ऑफ कन्याकुब्जा। एंड दिस रूलर also conquered eastern Magad kingdoms. Eastern Magad. He conquered eastern Magad. ओके, तो अब देखिए कश्मीर के रूलर ने क्या क्या कॉन्कर किया। अब इसमें आपका असम भी आ जाएगा। ईस्टर्न मगध कॉन्कर किया ललितादित्य ने। ओके, कामरूप कॉन्कर किया, कामरूप। ही कॉन्कर्ड कामरूप। ही कॉन्कर्ड गौड़ा, गौड़ा बंगाल। ओके, ही कॉन्कर्ड कालिंगा ऑल्सो, उड़ीसा। तो अब देखिए मगध बिहार, कामरूप आसाम, गौड़ा बंगाल, कालिंगा उड़ीसा, 4 स्टेट को किसने अपने कब्जे में लिया? कश्मीर के रूलर में। ये हिस्ट्री तो पढ़ाई नहीं जाती लोगों को। ये हिस्ट्री आप लोगों ने पढ़ी नहीं होगी ऐसी कि अच्छा ये भी कोई रूलर था, कश्मीर का रूलर था जो आया था, कामरूप को भी उसने कॉन्कर कर लिया था। पढ़ाया नहीं जाता है। एंड दिस ललितादित्य मुक्तापिदा, he extended his influence in Malwa region also. Malwa, गुजरात। अब सोचिए कश्मीर से लेके बिहार पे आया, असम कामरूप भी ले गया, गौड़ा भी ले कॉन्कर किया, कलिंगा भी कॉन्कर किया, मालवा भी पहुंचा, सेंट्रल इंडिया पहुंच गया। एंड दिस रूलर डिफीटेड अरब्स ऑल्सो, डिफीटेड अरब्स एट सिंध। ही डिफीटेड अरब्स एट सिंध। तो सोचिए कितना बड़ा महान रूलर होगा। चाइना का एम्परर इसको रिकॉग्नाइज कर रहा है। ये तुमने पढ़ा ही नहीं होगा कभी। समझ में आ रहा है? अब जो तुम ये पढ़ रहे हो ना कश्मीर के बारे में, ये रियल चीज पढ़ रहे हो। अब जब तुम कश्मीर समझोगे तुम्हें आज की प्रॉब्लम समझ में आएगी। कश्मीर इज अ लैंड ऑफ पीस, रिसोर्सेज। And after the death of Lalitya Muktapida,
ओके, इसको मारा नहीं था, बीमार होके बूढ़ा होके मरा था. आफ्टर हिज डिमाइज कश्मीर्स इन्फ्लुएंस ओवर अदर किंगडम्स डिक्लाइंड and this Karkota dynasty ended in 856 AD. Okay, after his death Karkota dynasty ended in 856 AD. समझ में आ रहा है, ये याद रखिएगा. ओके, अब इनकी तो सोचिए कितना बड़ा और महान रूलर था. अब आज आपको हिस्ट्री पता चल रही है. नाउ अब इसकी डेथ के बाद कौन नया रूलर आता है? मैंने आपको एक डायनेस्टी बताई थी, उत्पाल डायनेस्टी. एंशिएंट हिस्ट्री में उत्पाल डायनेस्टी, उत्पाल. एंड दिस डायनेस्टी फाउंडेड बाय whom? अवंती वर्मन. अवंती वर्मन, फाउंडर of Utpal dynasty, अवंती वर्मन. And he followed the Karkotas. कारकोटा डायनेस्टी के बाद कौन सी डायनेस्टी कश्मीर में बनी? अवंती वर्मन की उत्पाल डायनेस्टी. समझ में आ रहा है, ये याद रखिएगा. एंड हिज सक्सेसर, अवंती वर्मन सक्सेसर कौन थे? शंकरा वर्मन. शंकरा वर्मन, अवंती वर्मन सक्सेसर शंकरा वर्मन. He led a successful military campaign against गुर्जर्स इन पंजाब. और इसने कहां पे कैंपेन किया? पंजाब में गुर्जर्स के खिलाफ. अगेंस्ट गुर्जर्स, अगेंस्ट गुर्जर्स. समझ में आ रहा है, ये याद रखिएगा. एंड इन 10th सेंचुरी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी. ओके, अब 10th सेंचुरी में क्या हुआ? अब इसी के बाद 10th सेंचुरी, so after the death of Avanti, after the death of Shankara Varman, okay, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाती है 10th सेंचुरी एडी में कश्मीर में. कश्मीर में अब क्या है 10th सेंचुरी एडी में? पॉलिटिकल, कश्मीर, कश्मीर में क्या है? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी. समझ में आ रहा है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी. अब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाएगी, और जब जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी तो रॉयल किंगडम्स के मिनिस्टर्स, सोल्जर्स, कोई भी होते हैं, ये लोग पावरफुल होना शुरू होते हैं. समझ में आ रहा है. तो अब उस टाइम पे कश्मीर के जो रॉयल बॉडीगार्ड्स होते थे उनको बोला जाता था टैट्रिन्स. कश्मीर के रॉयल बॉडीगार्ड्स को क्या बोला जाता था? टैट्रिन्स. टैट्रिन्स. समझ में आ रहा है. अब जो कश्मीर के रॉयल बॉडीगार्ड थे, जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई थी, तो ये जो टैट्रिन्स होंगे ये पावरफुल हो जाएंगे. ओके, दे बिकेम वेरी पावरफुल इन कश्मीर. ओके, एंड अंडर द टैट्रिन्स, under royal bodyguards, under टैट्रिन्स, civil administration collapsed and chaos in कश्मीर. अब रूल किसका हो रहा है? टैट्रिन्स का. सिविल एडमिनिस्ट्रेशन कोलैप्स कर गया है, पूरा हर तरफ क्या मच गया? केओस. कि रूलर कौन है, क्या चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है. एंड फाइनली दीज टैट्रिन्स वर डिफीटेड बाय, अब इन टैट्रिन्स को कौन हराएगा? दे वर डिफीटेड बाय चक्रवर्मन. चक्रवर्मन, चक्रवर्मन, ये याद रखिएगा. दीज टैट्रिन्स वर डिफीटेड बाय whom? चक्रवर्मन. ओके, चक्रवर्मन. ये याद रखिएगा. अब चक्रवर्मन ये कौन थे? मैं भी आपको बताता हूं. मैंने आपको एक डायनेस्टी का नाम बताया था, हिंदू शाही डायनेस्टी. हिंदू शाही डायनेस्टी, अगर आप याद करें, जब गजनी लोग आए थे. समझ में आ रहा है?
हिंदू शाही डायनेस्टी बताया था, याद रखिएगा। ओके, तो हिंदू शाही डायनेस्टी में हिंदू शाही डायनेस्टी की जो क्वीन होती हैं, ओके, जो क्वीन होती हैं वो कहां की होती हैं? ये हिंदू शाही डायनेस्टी कहां की होती है? काबुल साइड, काबुल साइड। समझ में आ रहा है? ओके, और हिंदू शाही डायनेस्टी में ही क्वीन की साइड की, क्वीन के मदर की साइड, ये याद रखिएगा, मतलब जो मैटरनल हम बोलते हैं ना, जैसे आपके मॉम के साइड के लोग क्या बोले जाते हैं? मैटरनल। तो वैसे हिंदू शाही डायनेस्टी में जो क्वीन थी, उनके मदर के साइड की एक क्वीन थी, क्वीन डीडा, क्वीन डीडा, who descended from Hindu Shahis of Kabul on her mother's side, and she took over as a ruler in second half of 10th century. Okay, ये याद रखिएगा। तो चक्रावर्मन जो थे, ये कौन थे? क्वीन डिडा के साइड के। और चक्रावर्मन के बाद सेकेंड हाफ ऑफ 10th सेंचुरी में कौन बनता है रूलर कश्मीर का? क्वीन डिडा। और ये किसके रिश्तेदार थी? हिंदू शाही डायनेस्टी काबुल की, उनकी क्वीन की मदर साइड की थी ये क्वीन डिडा। एंड आफ्टर द डेथ ऑफ क्वीन डिडा, ओके, हर थ्रोन, इनका जो सिंहासन था, इनका जो गद्दी था, किसको मिला? लोहारा डायनेस्टी, लोहारा डायनेस्टी। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा। टेंट्रिंस को किसने हराया? चक्रवर्मन। चक्रवर्मन के बाद कौन बना? क्वीन डीडा। क्वीन डीडा कौन थी? रिश्तेदार थी हिंदू शाही डायनेस्टी की, काबुल की, मैटरनल साइड से। एंड आफ्टर हर डेथ, ओके, आफ्टर हर डेथ, हर थ्रोन वॉज पास टू लोहारा डायनेस्टी। ये याद रखिएगा, इनका थ्रोन कहां गया? लोहारा डायनेस्टी। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा। ओके, एंड लोहारा डायनेस्टी पावरफुल डायनेस्टी थी। एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड इटसेल्फ, महमूद गजनी, महमूद गजनी, he tried, he made 2 attempts to conquer कश्मीर। 2 अटेम्प्ट बनाए इसने, 2 अटेम्प्ट दिए कश्मीर को कॉन्कर करने के लिए। एंड however both his campaign failed because he could not take the siege, he could not seize the fort at लोहकोट। एक फोर्ट है जो रॉयल किंग का था, वहां पे लोहारा डायनेस्टी का जो फोर्ट था लोहकोट में, ओके, उसको सीज नहीं कर पाया। ओके, लोहारा डायनेस्टी के फोर्ट को सीज नहीं कर पाया महमूद गजनी लोहकोट में। एंड दोनों ही अटेम्प्ट फेलियर थे इसके। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा। ओके, एंड लोहारा डायनेस्टी ये कब तक चलेगी? दिस लोहारा डायनेस्टी पावरफुल डायनेस्टी थी, मैंने आपको बताया। ओके, एंड ये डायनेस्टी चलेगी 1346 तक। ओके, शुरुआत कब से हुई थी? 1003 AD टू 1346, ये याद रखिएगा, लोहारा डायनेस्टी का टाइम पीरियड। एंड आफ्टर लोहारा डायनेस्टी मुस्लिम रूल शुरू होगा कश्मीर में, मुस्लिम रूल। समझ में आया? मुस्लिम रूल मींस मेडिवल हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये याद रखिएगा। तो ये लेक्चर मैंने आपका पूरा एंशिएंट हिस्ट्री बता दी कश्मीर की। एंड इन नेक्स्ट लेक्चर आई विल बी डिस्कसिंग द मेडिवल हिस्ट्री। यहीं से हम शुरुआत करेंगे मेडिवल हिस्ट्री कश्मीर की। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा।
तो आई होप आपको बहुत ही अच्छा लगेगा ये लेक्चर देख के, समझ के, आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। ओके, तो थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।